Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amina. My AG number is 2020 AG 3463. I am student of PSC Honors Agriculture of Section G. Today I am here to discuss about presentation of Agri Extension given by Dr. Rao Sattar. And presentation topic of group number 6 is Smart Punjab program. First of all, I want to introduce of our group members. कायनात, माजिद मुश्तबा, मास खालिद, सलाहुद्दीन तजम्मुल, बिलाल अहमद, हाफिज़ ज़ीशान रशीद, शहरियार मलिक, उज़ैर अहमद, मियाँ बिलाल. Now I have to introduce main contents. Agriculture, Punjab contribution in agriculture. What is Smart Punjab program? Aims of Smart, instruments for Smart Punjab program, objective of the program, aspects of the program, impact of the program, result areas. Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing crops and raising livestock. It means that agriculture is art. हम एग्रीकल्चर को आर्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इंसान ने अपने ख्यालात और महारत के ज़रिए से इसमें तरक्की की है. एग्रीकल्चर इज़ साइंस. वाई? Agriculture is science because we use technology and we use many instruments for the rapid growth of crops. और ये आर्ट और साइंस एक दूसरे से इस तरह रिलेट करते हैं क्योंकि साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी है और आर्ट के ज़रिए से इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करवाया जाता है. Second point is that it includes the preparation of plant and animal products for people to use and their distribution to markets. It means that एग्रीकल्चर की वजह से हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट और मेडिसिन, जिसकी वजह से इंसान उसे इस्तेमाल करता है और इसे मार्केट्स में अलग अलग इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. Our other point is that role of agriculture. Agriculture provides most of the world's food and fabrics like cotton, wool and leather are all agricultural products. Agriculture also provides wood for construction and paper products. We have to know that what were their sources. Cotton is obtained from seed pods of the cotton plant and the other is wool, that means wool, from the animals like sheep, goat and yak and other some animals. These animals have the hair on their bodies to keep their bodies warm. And leather is obtained from the animals like sheep, goat. And the other main source is that wood. We use wood for the construction like buildings or furnitures, chair, table and other paper products. These products as well as agricultural methods used may vary from one part of the world to another. हम इन प्रोडक्ट्स का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. कई जगहों में लकड़ी को सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम कई इलाकों से इनका इस्तेमाल चेंज करते रहते हैं. Our main point is that Punjab contribution of agriculture. That is the most important feature of Punjab province. Especially the Punjab province is famous for agriculture. 57% of the total cultivated and 69% of the total cropped area of Pakistan. इसका मतलब ये है कि हम पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ और सिर्फ फसल उगाने के लिए करते हैं. And second feature of the Punjab province is that it contributes a major share in the agricultural economy of the country by providing about 83% cotton, 80% of wheat, 97% fine aromatic rice, 63% of sugar cane and 51% of maize to the national food production. इसका मतलब ये है ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में 83% रुई, 80% गंदम, 97% उम्दा चावल, 63% गन्ना, 51% मकई मुहैया करके कौमी खुराक की पैदावार में अहम किरदार अदा करती है. इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. दैट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ आवर लाइफ. And the other main constituents of agriculture productions are that among the fruits, mango accounts for 66%, citrus more than 95%, that have grapes, lemons and oranges, guava 82% and dates 34% of total national production of these fruits. These are main sources of our money because we export to other countries and get money. We have another point, lack of progress of Punjab agriculture. And the main point first is that lack of progress of Punjab has numerous causes, but primarily reflects low farm level productivity growth,
resulting in high unit production cost and lack of competitiveness, distorted cropping patterns with limited diversification to high value crops, and large herds of low producing animals. It means that पंजाब में तरक्की की कमी की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे अहम ये है लो फार्म लेवल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। ज़मीन बंजर होने की वजह से वहाँ फसलों की अच्छी तरह नशोनुमा नहीं हो पाती। एंड अदर इज़ दैट रिजल्टिंग इन हाई यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसकी वजह से हम फसल करते हैं जैसे बीज, ट्रैक्टर और काफ़ी अदर दूसरी चीज़ें, और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसका मतलब ये है कि कई लोगों में मसावकत नहीं पाई जाती है, बराबरी नहीं है, कोई ऊंचे लोग हैं कोई नीचे लोग हैं, तो उनके पास कई लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं और उसकी वजह से वो अपने फसलों की जो महंगाई है वो ज़्यादा कर देते हैं। डिस्टोर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न्स विद लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, इसकी वजह से कई लोगों के पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं और उन पर सही तरह से फसल नहीं उगाई जा सकती। एंड लार्ज हर्ड्स ऑफ लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, और कई छोटे खेत हैं जिनकी वजह से एनिमल्स को अच्छी तरह से हर्ड नहीं कराया जा सकता। एंड द अदर मेन पॉइंट इज़ दैट इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स पुअर ट्रांसपोर्ट, इसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि फसल अगर पूरी तरह पककर तैयार हो जाए तो उसे शहरों तक पहुंचाने के लिए अहम ट्रांसपोर्ट नहीं है, जैसे ट्रक वगैरह, और स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग रिजल्टिंग इन हाई लॉसेस एंड लिमिटेड वैल्यू एडिड एंड एंटिक्वेटेड मार्केटिंग सिस्टम्स दैट डिस्टॉर्ट प्राइसेस एंड इंसेंटिव्स, इसकी वजह से कई चीज़ें महंगी हो जाती हैं और शहरों में इसकी किल्लत हो जाती है। फाइनली agriculture production is negatively affected by unsustainable use of key natural resources, particularly water. नेचुरल रिसोर्स जो कि वाटर है, जो जिसके बहुत से ज़राए हैं जैसे आबपाशी, ट्यूबवेल और बारिश वगैरह, उसके ज़रिए से फसलों को अच्छी तरह से पानी नहीं मिलता और उनकी सही तरह से नशोनुमा नहीं हो पाती। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। वी हैव द लास्ट मेन पॉइंट इज़ दैट चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। इस पर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हमारी ज़राअत को किन किन मसाइल का सामना है और वो हम उस पर कैसे काबू पा सकते हैं। एज़ वी नो, पाकिस्तान इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर मोस्ट ऑफ थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, उसको अपनी तरक्की के लिए ज़राअत पर डिपेंड करना पड़ता है, और वो जिसकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें हासिल करते हैं और हम ज़िंदा रहते हैं। As our needs are increasing, the agriculture system should also increase, then it will provide us with better food and many other important things. इसका मतलब ये है जैसे ही ज़रूरियात बढ़ रही हैं, महंगाई ज़्यादा होने से चीज़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा बढ़ती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़मीन कम हो गई है जिसकी वजह से फसलें नहीं उगाई जा सकती, और ज़राअत को इस मसाइल का बहुत देर से सामना है। इसलिए इस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ज़रूरी इक़दाम करें। एग्रीकल्चर सिस्टम इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, क्रॉप डिजीज, पेस्ट, लो वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, लैक ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स आवर गवर्नमेंट इज़ फॉर्मिंग मैनी स्ट्रेटजीज़। इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर बनाएं। इसमें काफ़ी मसाइल का सामना है, जैसे आबो हवा अच्छी नहीं है, कई लोगों वहाँ पर फैक्ट्रियाँ और अपने घर बनाई जा रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर आबो हवा और वहाँ पर निकलने वाले धुएँ की वजह से आलूदगी फैल रही है, और कई फसलों को बीमारियाँ हो जाती हैं, कीड़े उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, और कई महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। इन पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर पूरी कोशिश करें, रिसर्च करें, ताकि हम इस सारी बीमारियों को दूर कर सकें और एग्रीकल्चर को इस चैलेंजेस से बचा सकें। थैंक यू। Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all, Assalamu alaikum to my respected teacher, Dr. Rao Sabir Sattar Sahib, and all fellows. And my name is Hafiz Ishan Rashid, and my AG number is 2020 AG 3505. And I am from Agriculture Department. And today is my presentation day, and my topic is adequacy of Smart Punjab. And
Sometimes ago, my group fellow was talking about a Smart Punjab program, and now I'll continue a Smart Punjab program, and my topic is adequacy of government program. Now let's start. The World Bank Technical Assistance, Government of Punjab, has drawn together various policy and programmatic initiatives into an overall strengthening markets for agriculture and rural transformation in the Punjab program that the P for all will supports. पैराग्राफ की इन लाइंस में ये बताया जा रहा है कि आलमी बैंक की तकनीकी इमदाद से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब बैंक प्रोग्राम में ज़राअत और देही तब्दीली के लिए मजमूई तौर पर मजबूत मंडियों या मार्केटों में मुख्तलिफ़ पॉलिसी और प्रोग्रामी इक़दामात को इकट्ठा किया है, जिसकी हिमायत जो है वो PR करेगा. PR mean program result. The government program provides a technically sound and credible approach to agricultural and rural transformation. इसमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम ज़री और देही तब्दीली के लिए तकनीकी तौर पर मज़बूत और काबिल एतमाद नुक्ता नज़र फ़राहम कर रहे हैं या नुक्ता नज़र फ़राहम करता है. It represents a move away from the traditional approach followed by the government of Punjab that attempts to promote agriculture through price support and blanket subsidies, and instead focuses on the following. इन लाइंस में ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो रवायती नुक्ता नज़र से हटकर एक इक़दाम की नुमाइंदगी करता है, जो कीमतों की मदद से और सब्सिडीज़ के ज़रिए ज़राअत को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है और इसकी बजाय मंदरजा झैल पर तवज्जो करता है. आगे आ जाता है a more market oriented development paradigm with key legislation aimed at liberalization of output and inputs markets. इसमें इन लाइंस में ये कह रहे हैं कि एक ज़्यादा मार्केट पर मबनी जो तरक्याती पैराडियम जिसका मकसद पैदावार और इनपुट्स मार्केटों को आज़ाद बनाना है. Gradual phasing out of the wheat procurement program. इसमें ये बता रहे हैं कि जो गंदम है उसकी ख़रीदारी के प्रोग्राम को बतदरीज ख़त्म करना है. आगे आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द wheat market has resulted in high wheat and flour prices and large surplus stocks. इनमें ये बता रहे हैं कि जो गंदम की मंडी है उसमें हुकूमती मुदाखलत के नतीजे में जो गंदम है और आटा है, इन दोनों की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं और ये भी बता रहे हैं कि इजाफ़ी ज़खाइर भी इसमें आ चुके हैं. Better targeting of subsidies to small farmers. इसमें ये बताया है कि जो छोटे किसान हैं उनको मदद का या इमदाद का बेहतर हदफ जो है बनाया गया है. Improved focus of government spending including on technology, innovation, high value agriculture, preventive animal health care, crop insurance, CSA and promoting value adding and agri businesses. इसमें इन लाइनों में ये बता रहे हैं
कि टेक्नोलॉजी की इजादात जो हैं उनमें आला कदर की जो ज़राअत है और जानवरों की सेहत और उनकी देखभाल और फसल बीमा और CSA और ज़री कारोबार को तरक्की देना है। एंड नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली वाटर। इसमें ये बताया गया है कि जो सरकारी अखराजात की बेहतर तवज्जो और कुदरती वसाइल हैं ख़ास तौर पर पानी के लिए बेहतर इंतज़ाम पर ज़्यादा तवज्जो की जा सकती है या ज़्यादा तवज्जो की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द प्रपोज्ड चेंजेस विल नॉट प्लेस अ फर्दर फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसमें ये बता रहे हैं कि ये तवक्को की जा सकती है कि या ये तवक्को की जा रही है कि जो तजवीज़ करदा तब्दीलियों से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है इस पर कोई भी किसी किस्म का माली तौर पर बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा। but by forcing on improving and redirecting agricultural subsidies and public investment expenditures on agriculture, they would enhance effectiveness of public resources use and even might reduce fiscal outlays. इस इन लाइंस में ये बताया गया है कि ज़री सब्सिडी और ज़राअत पर अवामी सरमायाकारी को बेहतर बनाने और इनकी तरफ तवज्जो करने से अवामी मसाइल के इस्तेमाल की असर पजीरी में इजाफ़ा होगा और माली अखराजात में भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। Assalamu alaikum. I am Shariar Malik. My AG number is 2020 AG3471. As my group fellows have already introduced about this program, so let's move forward. Smart Punjab program. SMART itself is an abbreviation which stands for Strengthening Market for Agriculture and Rural Transformation. The government of Punjab has started a program for agriculture and rural transformation which emphasizes enabling productivity, increasing competitiveness in agriculture marketing and trade, and strengthening the markets for agriculture and rural transformation. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किए है जिसके मकासद में हमारी ज़राई पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा करना शामिल है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कंपटीशन लाना और इसको स्ट्रेंथन करना भी इसी प्रोग्राम में आता है ताकि इन मंडियों से रीज़नेबल प्रॉफिट हासिल किया जा सके। जितनी ज़्यादा मंडी मजबूत होगी इतने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज़ स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम? स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम क्या है? The government of Pakistan and specifically the government of Punjab has contracted a loan from the World Bank called Strengthening Markets for Agriculture and Rural Transformation. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब की हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ किया है और इसी की मद में वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा भी लिया है ताकि हमारी ज़राई पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा हो, हमारी ज़राई पैदावार बढ़े और इसी के साथ साथ किसानों को मुख्तलिफ सहूलियात भी दी गई हैं ताकि वो अपने अशिया को आसानी से खेतों से मंडियों तक ले जा सके जिससे मंडियां मजबूत होंगी और इसी के साथ साथ फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा और रीज़नेबल प्रॉफिट हासिल हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट्स 15 आउट ऑफ द 25 एरियाज ऑफ रिफॉर्म ऑफ द पंजाब एग्रीकल्चर। अच्छा, स्मार्ट एक इनकलाबी मंसूबा है। ये बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है और पंजाब में ज़राअत की 15 रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है और इससे हमारी इकॉनमी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इट इंक्लूड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वीट मार्केटिंग, प्रोड्यूस मार्केट्स, इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स में हमारी
गंदम वीट मार्केट में पॉजिटिव चेंजेस लाना है ताकि हमारी गंदम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ सके। इसके अलावा प्रोड्यूस मार्केट्स मंडियों में इजाफा करना है। इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन आबपाशी और पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, पानी को ज़िया से बचाना है। मोर ओवर इट स्टिमुलेट्स द एग्री बिजनेस सेक्टर्स मीन्स एग्री बिजनेस सेक्टर्स यानी कि ज़राअत से मुंसलिक जितने भी कारोबार हैं, इंडस्ट्रीज़, उन सब में प्रोग्रेस लाना है ताकि उससे अवाम उन्नास को फ़ायदा हो। The Government of Punjab Program for Agriculture and Rural Transformation emphasizes enabling productivity, increasing competitiveness in agricultural marketing and trade, and enhancing resilience. I have already told about this, so move forward. The program will be implemented under the coordination of the Planning and Development Department in coordination with Agriculture, Food, Irrigation, Livestock, डेयरी एंड अदर इंडस्ट्रीज़। ये स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसे महकमे मनसूबाबंदी व तरक्की भी कहते हैं, के ताउन से इम्प्लीमेंट लागू किया जाएगा और इसके अंदर मुख्तलिफ शोबे शामिल होंगे जिसमें एग्रीकल्चर, खुराक का शोबा, इरिगेशन, लाइवस्टॉक, डेयरी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह शामिल होंगी। एंड दिस प्रोग्राम विल प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ दीज departments. Our next topic is aims of Smart Punjab program. The Smart Punjab P4R. Here P4R stands for Program for Results. Will support selected parts of the broader government program over 5 years. ये जो स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम है ये 5 साल के लिए फॉरेन गवर्नमेंट के सिलेक्टेड पार्ट्स को सपोर्ट करेगा। इन सिलेक्टेड पार्ट्स में जो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देखते हैं। These selected parts will consist of focus on increasing crops and livestock productivity. इसमें न सिर्फ फसल की पैदावार को बढ़ाना है बल्कि इसके साथ साथ मवेशियों की अफजाइश भी शामिल है। रिसर्च एंड एक्सटेंशन पॉलिसी, ट्रांजिशन टुवर्ड्स HVA एंड CSA. HVA स्टैंड फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड CSA स्टैंड फॉर कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर। जैसा कि हमें पता है हमारे किसान ओल्ड वे एग्रीकल्चर को अपनाए हुए हैं, अभी तक उन्हें टेक्नोलॉजी का ज़रा इस्तेमाल का नहीं पता। उनको एजुकेट करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, मवेशियों की अफजाइश करवानी है और इसके अलावा उनका तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें शामिल है। एग्री बिजनेसेस, enhancing resilience and inclusiveness, and improving the functions of crop and livestock market including food safety. फसलों और जानवरों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट लानी है। Here is the framework for agriculture and rural transformation in Punjab. First comes the smart market reforms, then amount spent on it, and finally the smart public investments and incentives. These smart reforms include modernization of wheat marketing system, sustainable use of irrigation water, agriculture and livestock marketing and pricing reforms, agriculture inputs delivery. इसमें वीट मार्केट्स एंड एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक मार्केट को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। इसके अलावा इरिगेशन वाटर का सस्टेनेबल यूज़ भी इसी में आता है। और अब नेक्स्ट है इस पर कितनी अमाउंट स्पेंड हो चुकी है। इस पर तकरीबन 515 मिलियन पर ईयर $US इन्वेस्ट होते हैं। और फिर आखिर में इसके इंसेंटिव्स आते हैं जिसमें स्मार्ट सब्सिडीज़, मतलब कि टू गिव सम मनी टू सपोर्ट इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स ट्रांजिशन टू हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, मतलब कि किसानों की हौसला अफजाई करनी है कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स एंड एक्सटेंशन, value adding through agribusiness development, food safety, skills development, crop livestock insurance, improved irrigation, M&R climate smart agriculture. The next is instrument for smart program.
A P4R is considered to be the most suitable instrument for the SMART program. The P4R instrument provides an ideal vehicle for prompting required behavioral changes by introducing performance-based incentives to reward provincial and lower levels for improvement in agriculture management. P4R इंस्ट्रूमेंट बिहेवियरल चेंजेस के लिए आइडियल व्हीकल के तौर पर काम करता है, जिसके ज़रिए हम सूबाई व मकामी सतह पर टारगेट अचीव कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. Here is the list of budget for P4R supported program and foreign government program. On the left side, there are different subsectors which include agriculture, livestock, and then their subtotal. Then comes the Kisan package, estimated expenditure of human resource involved, irrigation, then their subtotal, irrigation, rural roads program, and broader government program. And on the right side, there are different amounts invested in different years. In agriculture subsector, $200 million was invested in 2017 and 18, then 237 in 2018 and 19, 235 in 2019 and 20, and total is 11,117. Then in livestock subsector, $91 million was invested in 2017 and 18, $100 million in 2018 and 19, and then it gradually increases, and the subtotal of all is $18 million. $18 million from 2017 till now. Similarly, subtotal of P4R supported program with Kisan package is $1,590 million till now. In irrigation, $23, $26 million, and so on. Thanks for watching. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Maaz Khalid from section G, group number 6, and my AG number is 2020 AG 3497. In this presentation, I would discuss the major objectives of the Smart Punjab program. Then I will mention the various subsidies provided by both provincial and federal governments for farmers in Punjab. Then at last I would discuss the major aspects of the Smart Punjab program. Objectives of this program. The Smart Punjab program, supported by a 5-year 2018 to 2023 US $300 million loan from IBRD, has three main pillars. IBRD is International Bank for Reconstruction and Development. वर्ल्ड बैंक का एक इदारा है. इस इदारे के $30 करोड़ के एक बड़े माली ताउन से शुरू होने वाले स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम P4R प्रोग्राम के तीन अहम मकासद हैं. There are three major objectives of this program. The first objective is to increase the productivity and incomes of crop and livestock smallholder farmers, including women farmers. सबसे पहला बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफ़ा किया जाए और बिलखसूस छोटे किसान पर, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनकी मदद की जाए, जिसके नतीजे में उनकी ज़रई आमदनी में इजाफ़ा हो और वो माली लिहाज से मज़ीद मुस्तहकम हो सकें. The second major objective is to increase value added in agriculture. इस प्रोग्राम का दूसरा अहम मकसद मुल्क में रवायती ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हटकर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है. मिसाल के तौर पर अगर एक किसान के पास काश्तकारी के लिए कम जगह दस्तयाब है, लेकिन अगर वो रवायती गंदम चावल से हटकर फ्रूट या ऑर्नामेंटल फ्लावर्स या कोई भी और हाई वैल्यू क्रॉप लगाता है और फिर उसे रॉ या प्रोसेस्ड फॉर्म में मार्केट की डिमांड के मुताबिक फ़रोख्त करता है, तो उससे होने वाली आमदनी कई गुना ज़्यादा होगी. The third objective is to improve farmers' resilience to climate change and natural disasters. तीसरा बुनियादी मकसद ये है कि किसान को मजबूत किया जाए ताकि वो माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से आने वाली मुश्किलात का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सके. Now, subsidies in agriculture in Punjab.
Now I will discuss various subsidies in agriculture provided by both provincial and federal governments in Punjab. Subsidies in agriculture in Punjab amount to nearly US $1.25 billion per year. पंजाब में किसानों को सालाना मिलने वाली सब्सिडीज़ की कुल रकम $1.25 अरब है. These subsidies are mainly on account of wheat, fertilizer, electricity, credit and irrigation maintenance and repair. ये सब्सिडीज़ किसानों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में दी जाती हैं. मिसाल के तौर पे खाद में सब्सिडीज़ इस तरह दी जा रही हैं कि आपको खाद की बोरी में से कूपन वगैरह मिल जाता है, जिसे वापस करने पर आपको 1000 रुपये तक भी माली रिलीफ मिल जाता है. इसी तरीके से ट्यूबवेल के इलेक्ट्रिसिटी बिल में हुकूमत पंजाब काफ़ी अरसे से जो है किसानों को 10,000 रुपये तक जो है वो सब्सिडी फ़राहम कर रही है. और इसी तरीके से क्रेडिट और इरिगेशन मेंटेनेंस और रिपेयर में भी सब्सिडीज़ फ़राहम की जाती है. About 40% US $515 million is paid by the government of Punjab, representing approximately 2.5 times the regular annual investment allocation for agriculture in the Provincial Annual Development Program ADP. इन सब्सिडीज़ की कुल रकम का तकरीबन 40% हिस्सा यानी $52 करोड़ पंजाब हुकूमत जारी करती है, जो कि ज़राअत के लिए सूबाई एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से मिलने वाली सालाना रकम से भी 2.5 गुना ज़्यादा है. उसके बाद हमारे पास एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कमोबेश 11 सर्विसेज या आइटम वाजे हैं जिनमें दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतें पंजाब के किसानों को माली रिलीफ या सब्सिडीज़ फराहम करती हैं. इनमें सबसे पहले है फर्टिलाइज़र गैस सब्सिडी की मद में $300 मिलियन सब्सिडी दी जा रही है. पंजाब के किसानों के लिए DAP के ऊपर डायमोनियम फॉस्फेट के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स में कमी करके $92 मिलियन सब्सिडी दी जा रही है. उसी तरीके से यूरिया के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स कम करके किसानों को $78 मिलियन सब्सिडी दी जा रही है. इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ट्यूबवेल्स में कमी करके $260 मिलियन सब्सिडी दी जा रही है. सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र पर $34 मिलियन सब्सिडी. ई वाउचर बेस्ड पोटेशियम फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी $19 मिलियन. वीट प्रोक्योरमेंट स्कीम पर $33 मिलियन सब्सिडी. वीट एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ की मद में $10 मिलियन. इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू फार्मर्स की मद में $57 मिलियन सब्सिडी. इरिगेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर की मद में $60 मिलियन. कॉटन एंड वीट सीड की मद में $3 मिलियन सब्सिडी. क्रॉप इंश्योरेंस थ्रू CLIS की मद में $2 मिलियन सब्सिडी. इन सब्सिडीज़ का 60% हिस्सा यानी $73 करोड़ वफाकी हुकूमत मुहैया करती है, जबकि बकिया 40% यानी $52 करोड़ सूबाई हुकूमत पंजाब जो है वो अपने किसानों को जारी करती है. Demystifying agriculture subsidies in the Punjab. Now I will discuss all the problems related to subsidies which make them ineffective for economic growth and stability of agriculture. Pakistan was a top performer in agriculture 25 years ago at a time when agriculture subsidies were significantly less than today. आज से 25 साल पहले पाकिस्तान एग्रीकल्चर में एक मुनफरद मुकाम रखता था, जबकि आज के बनिस्बत उस दौर में सब एग्रीकल्चर पर मिलने वाली सब्सिडी मुहैया की जाने वाली सब्सिडीज़ बहुत कम थी. और ये नीचे आप देख सकते हैं, ये तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर मौजूदा जो सब्सिडीज़ हैं वो कारआमद नहीं हैं. करंट सब्सिडीज़ डू नॉट वर्क एज फार्मर्स यील्ड्स हैव बीन लैगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मौजूदा सब्सिडीज़ कारआमद नहीं है क्योंकि ज़रूरी पैदावार नहायत कम है. करंट सब्सिडीज़ आर इनरिचिंग दोज फॉर होम द सब्सिडीज़ शुड नॉट बी इंटेंडेड. मौजूदा सब्सिडीज़ किसानों को छोड़कर दूसरे फरीक को फ़ायदा पहुंचाती हैं जिससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता. करंट सब्सिडीज़ आर आउटडेटेड एज दे हैव देयर रूट्स इन इंश्योरिंग सेल्फ सफिशेंसी इन वीट एंड राइस विच हैज़ बीन अचीव्ड. मौजूदा सब्सिडीज़ फरसुदा निज़ाम पर मबनी हैं जिसका बुनियादी मकसद लो वैल्यू क्रॉप जैसे गंदम और चावल वगैरह में ख़ुद मुख्तारी हासिल करना है. Current subsidies distort the level playing field and do not provide incentives to invest in high-value agriculture and post-harvest value addition where demand is moving towards. मौजूदा सब्सिडीज़ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन को प्रमोट नहीं करती.
जबकि इनकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। मौजूदा करंट सब्सिडीज़ जनरेट टेक्निकल इनएफिशिएंसीज इन इनपुट यूज़ देयर बाय लोअरिंग इकोनॉमिक रिटर्न्स। मौजूदा सब्सिडीज़ के इस्तेमाल में तकनीकी खराबियां देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से खातिर खा आमदनी नहीं होती। Current subsidies have significant environmental costs. Current subsidies make farmers dependent on government doleouts and discourage them to play their role as agriculture entrepreneurs. मौजूदा सब्सिडीज़ किसानों को हुकूमती इमदाद पर मुनसर करती हैं और छोटे कारोबार के ज़रिए हासिल होने वाली माली खुद मुख्तारी की हौसला शिकनी करती हैं। Current subsidies crowd out private sector investments as they deny them adequate incentives for invest in agriculture and agribusiness. मौजूदा सब्सिडीज़ प्राइवेट सेक्टर्स पर मुश्किलात आयद करती हैं, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। Current subsidies crowd out public investments that might have attractive returns by unlocking opportunities for growth, resilience, nutrition and social security. मौजूदा सब्सिडीज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स पर पाबंदियाँ आयद करती हैं जो कि ज़्यादा आमदनी के बेहतरीन मौक़े फ़राहम कर सकती हैं। At last, I would discuss the major aspects of the Smart Punjab P4R program. Number one is productivity and value of crops and livestock. ज़राई आमदनी, ज़राई पैदावार में और मयार में इजाफ़ा करना, इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सीड की मयार में और सीड के मयार में इजाफ़ा करना और पैदावार में इजाफ़ा करना। रिसर्च और एक्सटेंशन में ख़ुद मुख्तारी हासिल करना, इसमें एडवांसमेंट हासिल करना। लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी, जानवरों की अफजाइश में खातिर खा इजाफ़ा करना। लिंकेज बिटवीन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, शिफ्ट फ्राम वीट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम का एक बहुत ही निहायत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि लो वैल्यू क्रॉप से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ एग्रीकल्चर बिजनेस को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं वो लोकल रीजनल और ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ही हाई प्रॉफिट के साथ सेल आउट हो जाती हैं और इनसे हाई इनकम्स जनरेट की जा सकती हैं। इंक्रीज वैल्यू एडिशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। The rural non-farm sector in Punjab's agri-business sector, deregulating crop and livestock markets, deregulation of livestock sector prices, modernization of agriculture markets, फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, फूड सेफ्टी में इजाफा, enhanced resilience of smallholder farmers to climate change and natural disasters, sustainability of irrigation systems, access to crop and livestock insurance, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस में एक पार्ट प्ले करता है। इस मिसाल के तौर पे जो राइस पैडी फील्ड्स हैं उनमें से मीथेन गैस और मुख्तलिफ नाइट्रोस ऑक्साइड्स जो हैं वो खारिज होती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की शक्ल में खारिज होती हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए जिससे जो है वो प्रॉपर कार्बन सिंक्स बनाए जाएं और एमिशंस को कार्बन ग्रीन हाउस एमिशंस को कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम किया जाए। कम्युनिकेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। So these were all the major objectives of the Smart Punjab program. Then I discussed the various subsidies provided by Punjab government, and at last I discussed the various aspects of Smart Punjab P4R program. Jazakallah, thank you. Assalamu alaikum. My name is Majid Muitba from section G, and my AG number is 2020 AG3506. In this presentation, I would discuss about research in agriculture and how Smart Punjab program increases production of various crops. Research in agriculture. Punjab has a large and complex system of public research
and extension for both crops and livestock. The research system comprises several institutes, each with their own governing structure, as well as about 40 research farms and experimental stations that are under the direct management of the concerned departments. A number of universities also carry out research with two major institutes: University of Agriculture at Faisalabad, University of Veterinary and Animal Sciences. In 2007, the Government of Punjab established the Punjab Agriculture Research Board with the mandate of coordinating research with the national and other provinces, as well as managing a competitive grant scheme for crop and livestock research. Despite the right intentions, Punjab Agriculture Research Board was only partially successful in changing the traditional focus of agriculture research on the major crops and making research more relevant. The public system for agriculture research is complemented. रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पंजाब में 23 फसलों के तहकीकी अदारे हैं जिनकी तवज्जो उन इलाकों पर मरकूज़ है जहां नई टेक्नोलॉजीज़ नाफिज की जा सकती हैं। इनमें से 12 पर्टिकुलर क्रॉप्स जैसे राइस, शुगरकेन, मेज़, कॉटन etc. पर फोकस करती हैं। 5 फोकस ऑन पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स and 6 are discipline focus. फैसलाबाद में वाक़या अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सूबे का एक अहम ज़रूरी इदारा है। महकमा ज़राअत के पास तहकीकी फार्म्स की एक बड़ी तादाद भी है जिसमें कुल 19,000 एकड़ अराज़ी है। इसके अलावा पंजाब में नुमाइंदगी के साथ मुतअद्दिद फेडरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। The second aspect of this program is how to increase productivity of various crops. स्मार्ट रिफॉर्म पैकेज के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं: फार्म की सब्सिडी का काम करना, प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरी मंडी के क़याम की इजाज़त देना, पैदावार को इंक्रीज़ करना, मिल्क एंड मीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। दूसरे कंपोनेंट जैसा कि इरिगेशन वाटर में इजाफ़ा करना शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने, सार्फिन को कम कीमत पर बेहतर मेयार, मुनासिब और महफूज खाना मुहैया करना, फार्म्स में ज़्यादा मुलाजमतें पैदा करना और ज़रूरी कारोबार में मौके पैदा करने और आबाशी के पानी के इस्तेमाल में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। Here is a graph of average yield of farmer as percentage of best farmer yield. Another aspect of this program is how to increase its value addition in agriculture. अब तक दही सनतों में ज़्यादातर सरमायाकारी रवायती सरगर्मियों में रही है जो 4 बड़ी फसलों से मुतल्लिक है। Number 1. Milling of wheat. Milling of wheat is a process by which cereal grains are ground into flour. Number 2. Rice. Number 3. Sugar. And the last one is cotton ginning. कपास को चुनना शामिल है। अब ऐसे कारोबारी अदारों की भी बढ़ती हुई तादाद है जो ताज़ा एंड प्रोसेस फलों, सब्जियों, गोश्त और दूध के लिए बढ़ती हुई मार्केटों को पूरा करते हैं। कुछ बड़े पैमाने पर हैं और यूज्ड मॉडर्न इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। ताहम ये कुल पैदावारी का निस्बतन समाल थोड़ा सा तनासब है। मिसाल के तौर पर दूध की 5% से भी कम पैदावार पर बड़े पैमाने पर जदीद डेयरी यूनिटों के ज़रिए कार्रवाई की जाती है। Assalamu alaikum. My name is Kainat and my AG number is 2020AG3520 and I'm from section G of BSc Honours Agriculture. Now I'm here to present the further aspects of Smart Punjab program. The first one is livestock productivity, youth in agribusiness for rural transformation, the rural non-farm sector, and the last one is climate smart agriculture.
Okay, now we discuss about livestock productivity. लाइवस्टॉक को कॉमनली डिफाइन किया जाता है कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं लाइक शीप, गोट, बफेलोस, कैटल्स, जिनको फॉर द सेक ऑफ मीट, एग, मिल्क, लेदर एक्सेट्रा के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। अब इन एनिमल्स की जो प्रोडक्टिविटी है या इन एनिमल्स की जो प्रोडक्शन है उन्हें हम कहते हैं लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी। लाइवस्टॉक का जो है वो मेजर और इम्पॉर्टेंट किस्म का रोल है पंजाब की रूरल इकोनॉमी के अंदर, और मोर देन 6.5 मिलियन हाउस होल्ड्स जो हैं पंजाब के अंदर वो लाइव स्टॉक पे ही रिलाई करते हैं। इसके साथ जो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी है वो 30 से 40% हाउस होल्ड इनकम का ज़रिया भी है, जिससे जो है वो लोग या घराने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को सिक्योर करते हैं। जो पंजाब के अंदर सर्वे किया गया था 2015 से 2016 में, उसके अकॉर्डिंग जो पंजाब का शेयर है लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी के अंदर, जिसमें 65% पंजाब का शेयर है बफेलोस के लिए, 49% जो पंजाब का शेयर था वो कैटल्स के लिए था, 37% गॉड्स के लिए एंड 24% जो है वो इसका शेयर शीप्स के लिए था। द नेक्स्ट वन इज़ लाइव स्टॉक से जो है हमें मिल्क भी हासिल होता है। मिल्क जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक तो इस लिहाज से कि इससे फैमिली न्यूट्रिशन को पूरा किया जाता है, और दूसरा जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो डेली बेसिस पे जो है वो दूध बेचते हैं और ये डेली जो है इनकम का ज़रिया है उनके लिए। देन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाइवस्टॉक की प्रोडक्टिविटी की इन्हांसमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कराया जिसका नाम स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम है। इसके साथ पंजाब के अंदर जो है वो 7 लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिसमें से 4 तो हैं वो अंडर एक्सटेंशन आ जाते हैं रिकग्निशन में, लेकिन जो 2 हैं वो वर्टिनरी इंस्टीट्यूट्स हैं लाहौर में, जिनका जो मेजर फोकस है वो वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर है। इसके साथ एक पोल्ट्री डिपार्टमेंट है जो रावलपिंडी में है, उसका जो मेजर फोकस है वो डिजीज़ इश्यूज़ के ऊपर है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स यूथ इन एग्री बिजनेस फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि हम यूथ को जो है वो एग्री बिजनेस यानी कि ऐसे बिजनेस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनमें लेके आएँ, उनमें इन्वॉल्व करें, ताकि रूरल एरियाज़ के अंदर भी सोसाइटियल चेंज आए। स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम इस चीज़ को तस्लीम करता है कि जो अंगेज करना वुमेन या यूथ को एग्री बिजनेस के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये तब होगा जब हम यूथ को जो है वो फाइनेंशली तौर पे जो है उन्हें असिस्ट करेंगे। और दूसरा ये कि टारगेट किया जाए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को HVA के अंदर, और HVA का एब्रीवेशन ये है कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। मतलब ये कि हम यंग मेल्स और फीमेल्स को वेल एजुकेट करें ताकि वो एग्री बिजनेस की तरफ आएँ और अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। और ये कि हम बिज़नेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है। मतलब ये कि यूथ के अंदर इंडिविजुअली तौर पे अपना बिज़नेस शुरू करें और बाद में उस बिज़नेस को जो है उसको सेटअप करें, उसको प्रमोट करें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके अलावा मार्केटिंग करें थ्रू पंजाब स्ट्रैटेजी। पंजाब स्ट्रैटेजी का मतलब ये कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड जो है, मतलब PSDF जो है, इसके थ्रू जो है वह एग्री बिजनेस को प्रमोट करें और मार्केटिंग को प्रमोट करें। और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई हैं और प्रोग्राम भी लॉन्च करवाया है जो कि स्मार्ट पंजाब प्रोग्राम है, ताकि मार्केट्स को जो है वो स्ट्रेंथ मिले, उनकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ किया जाए एग्रीकल्चर के लिए, और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो प्रमोट किया जाए। और जो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है वो असिस्ट कर रही है वो वर्ल्ड बैंक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द रूरल नॉन फार्म सेक्टर। नॉन फार्म सेक्टर मीन्स के नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जिन सेक्टर्स में हो, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, प्रोसेसिंग कर लेना, मार्केटिंग कर लेना, स्टोरेज कर लेना, एक्सेट्रा। अब जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं रूरल इकोनॉमी के अंदर पंजाब की, लेकिन ये बड़ा इम्प्रॉपर सा और अनडिज़र्व पार्ट है। वो इस लिहाज से कि जो ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ सिटीज़ में ज़्यादा दी जाती है निस्बतन गाँव के। और इसके साथ ये कि 1/3 जो हाउस होल्ड्स हैं, घराने हैं, उनकी वो जो इनकम के लिए रिलाई करते हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर करते हैं, और जो अनदर 3rd पार्ट है उनका जो इनकम का सोर्स है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं।
और जो बाकी हिस्सा बचा है वो दोनों में आ जाता है, मतलब कि वो ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ पे भी रिलाई करते हैं और ऑन फार्म एक्टिविटीज़ पे भी रिलाई करते हैं। है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं फॉर इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसकी एक वजह ये है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड की वजह से, वो इस तरह के जब एक लैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा फार्मर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा तो एक तो इससे जो है वो फार्मर्स के अंदर झगड़ा होगा, और दूसरा ये कि कॉस्ट भी हाई हो जाएगी, और तीसरा ये कि जब हर मतलब डिवाइड की हुई लैंड के ऊपर बाउंड्रीज़ बनेंगी तो इससे भी लैंड लॉस होगा। तो इसकी वजह से ज़्यादा जो है वो हाउस होल्ड रिलाई कर रहे हैं और नॉन फार्म इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। अब जो रूरल पंजाब है उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके लिए ये करना होगा कि प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो उसे इंक्रीज़ करें, और इसके साथ साथ जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करें। लाइक हम ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इसे बेहतर करें। So, moreover, creating such off-farm jobs in rural areas or in small towns rather than in major cities carries major benefits. The last one is climate smart agriculture. मतलब ये कि अब हमने स्मार्ट एग्रीकल्चर को जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड देखना है। तो पाकिस्तान जो है वो उन टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आता है दुनिया में जो कि क्लाइमेटिकली वर्नरेबल कंट्रीज़ हैं। In the past decade, Punjab has experienced severe droughts followed by devastating floods. पास्ट के अंदर पंजाब में जो है वो स्फेयर किस्म के जो है वो खुश्क साली और फ्लड्स वगैरह आए हैं। अब इस नाकाबिले यकीन साइकिल ने, जो कि क्लाइमेटिक साइकिल था, इसने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और इरिगेशन सिस्टम को। तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम इस जो है वो एडवर्स क्लाइमेटिक थ्रेट्स को जो है वो ख़त्म कर सकें। अब इसके लिए जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई है जो कि इस चीज़ को जानती है कि जो क्लाइमेट चेंज है, कौन सा क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए और वाटर यूज़ के लिए ख़तरा है या थ्रेट है। और स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है ये रिसर्च बेस्ड अप्रोचेज़ जो एग्रीकल्चर में है उसे प्रमोट करता है ताकि जो मेल न्यूट्रिशन है या जो गुर्बत है उसे कम किया जा सके। किन चीज़ों के थ्रू? एक तो मार्केट्स को इम्प्रूव करके, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट के थ्रू, फोकसिंग ऑन फूड सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ। ताहम इस पॉलिसी पर जो अमल दरामद है ना वो वीक है, और इस चीज़ की ज़रूरत है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कम्बिनेशन हो अदर पॉलिसीज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ और फंडिंग प्रोग्राम के साथ, ताकि CS प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रमोट किया जाए। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. The scope of any subject depends upon your own ability. I am Bilal Hassan, roll number 759. The topic of my presentation is Communication Strategy Plan. Let we start the discussion of our topic. The first point of our topic discussion is provide an integrated communications approach that encourages broad-based public support for the proposed series of reforms. Similarly, the second point is inform the general population about the benefits of smart in terms of job creation, increased incomes, lower prices for consumers, more efficient irrigation, etc. Further, the third point is provide transparency and credibility to the SMART program through a process of two-way communication, engagement, and transparent consultation with key stakeholders. Furthermore, the fourth point of our topic discussion is address potential resistance of selected stakeholders and mitigate the risk of opposition to the proposed reforms. Bank support will continue through the strategy's implementation phase. Communication and capacity building.
The scale and transformational nature of Smart Punjab program, the Go Punjab with the support from the bank has started to develop strategic communication plan to properly communicate with the diverse range of stakeholders and affected parties of both external and internal. Similarly, an international consultant has been hired with bank support to the help with the strategy design and provide necessary training for relevant government officials in stakeholders mapping, strategy design, stakeholder engagement, two-way communications, and messaging, etc. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शिराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My name is Salahuddin Tajammal and my AG number is 2020 AG 3487. Our topic is Smart Punjab program. My group mates discuss the above point and now I discuss the modernization of agriculture markets. Number 1. Agriculture produce apart from cotton, sugarcane and wheat is regulated by the Punjab Agriculture Produce Market Ordinance PAPMO 1978. पैपमो एक ऐसा अदारा है जो 1978 में बना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है, जिनमें बीट, शुगरकेन एंड कॉटन वगैरह हैं. नंबर 2. अंडर पैपमो द गवर्नमेंट हैज़ अ मोनोपोली ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होलसेल मार्केट्स फॉर प्राइमरी प्रोड्यूस. पैपमो के ज़ेर साया गवर्नमेंट प्राइमरी प्रोड्यूस के लिए होलसेल मार्केट बना सकती है. नंबर 3. ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंस डीलर आर अलाउड टू ऑपरेट इन द मार्केट्स. सिर्फ मखसूस लाइसेंस रखने वाले लोगों को मार्केट चला सकते हैं. नंबर 4. मार्केट फीस आर हाई एंड इन कॉमनस्ट्रेट विद द लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड. मार्केट लेक इवन बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीनिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड फूड सेफ्टी. मार्केट की फ़ीस ज़्यादा होती है और इन बुनियादी सहूलतों की कमी होती है इनमें, जिनमें जैसा कि फैसिलिटीज़, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीनिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग फॉर फूड सेफ्टी. नंबर 5. Absence of alternative marketing channels such as farmer marketing, consumer marketing, direct marketing, e-marketing discourage the further development of value chain. मुतबादल मार्केट की गैर मौजूदगी ने, जैसा कि किसानों की मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, डायरेक्ट मार्केट, ई मार्केट वगैरह ने वैल्यू चेन की तरक्की को रोक दिया है. Number 6. While according to PAPMO, market should be run by market committees made up of representative of wholesaler. In the practice, these markets have been run by government-appointed administrators who are the member of the market committee. लेकिन पैपमो के मुताबिक मार्केट सिर्फ मार्केट कमेटी ही चला सकती है, जो कि गवर्नमेंट के मुकर्रर शुदा एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वही चला सकते हैं, जो कि मार्केट के मेंबर होते हैं. नेक्स्ट है जी इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी. Number 1. Development of better food and agriculture standard backed by suitable testing and enforcement mechanisms would improve the quality of food product and positively contribute to the public health. अच्छी खुराक को पैदा करना और ज़राअत के मेयार को और खुराक के मेयार को टेस्टिंग के ज़रिए लोगों के लिए बेहतर बनाना. Number 2. DLI would be measured by tracking progress against establishing and operationalizing a network of food safety testing laboratory, including a provincial reference food testing laboratories and a number of regional and mobile testing laboratories. DLI खुराक की टेस्टिंग लैब के नेटवर्क, जिसमें प्रोविंशियल रेफरेंस फूड टेस्टिंग लैब एंड मोबाइल टेस्टिंग लैब की तरक्की को मालूम करता है. The DLI involve following. Number 1. One provincial reference agriculture food and drug testing lab established and operational by 2019. एक सूबाई एग्रीकल्चर हवाले से खुराक और ड्रग की टेस्टिंग के लिए बनाई गई लैब 2019 में ऑपरेशनल हुई. नंबर 2. One regional agriculture food and drug testing lab established and operational by each of the year 2020, 21 and 22. मकामी खुराक और ड्रग टेस्टिंग लैब 2020, 21, 22 के दौरान बनाई गई और ऑपरेशनल की जाएगी.
2, 3 and 4 mobile food testing lab operational by respectively 2020, 21 and 22. Next है linkage between public institutions. The Smart Punjab P for R will also support strengthening the institutional capacity of and transsectoral linkage between key public institutions responsible for agriculture and rural development. In recognition of the fact that improved agriculture policies and public investment allocation will have to be accompanied by the institutional change, the P for R will help Go Punjab in strengthening the institutional capacity of and transsectoral linkage between key public institutions responsible for agriculture and rural development, including the agriculture, livestock, irrigation, food industry, finance and planning and development department, as well as selected other agencies including the Punjab Agriculture Research Board and the Punjab Livestock Dairy Development Board. Institutional strengthening and change also imply to reorientation of the function of public institution away from direct market inventions toward control and enforcement. The food department would move away from focusing on wheat procurement toward ensuring food safety. The bank has committed to provide technical assistance to help implementing the wheat marketing modernization program led by the food department. Assalamu alaikum to everyone. My name is Bilal Ahmed and my age is 2020 AG 3500. Today's my topic is impact of Smart Punjab. Impact of Smart Punjab on income, employment and poverty will be significant and consist of 2.2 billion US dollar in additional AG GDP, 3,50,000 additional jobs, and 1.7 billion people lifted over poverty over a period of 5 years. Smart Punjab will raise income from primary production as well from agriculture-based value-adding activities. It would also increase employment, particularly of youth and of women, and improve sustainability and resilience of agriculture and rural activities. और इसका ग्राफ है शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. गुर्बत की शरह जो ऊपर जा रही है बड़ी तेज़ी से. Through promoting agriculture sector development, Smart Punjab will positively contribute to poverty reduction in Punjab. Over the past decade, and the half Punjab made significant progress in the fight against extreme poverty, more than halving its head count poverty rate from 61% in FY2 to 25% in FY14. Estimate over the period of 2002 to 2014 indicates elasticity of poverty to agriculture GDP growth of 1.28, implying that 1% growth is agriculture GDP reduced poverty by 1.28%. In terms of absolute numbers, the program thus has potential to lift approximately 1.7 billion people out of poverty. Program development objective to increase productivity of crops and livestock, improvement of climate, forestry, agribusiness, development in Punjab, disbursement indicator, implementation agreement of Smart Punjab program, steadily coming. Result areas. The results areas and their corresponding DLIs have been selected mainly based on their relevance and critically for achieving transformative change in the agriculture and rural sector of the Punjab. The Smart Punjab P for R will support selected parts of the government's border program by helping the government to bring transformational change in the agriculture, livestock, water resources, surface irrigation and groundwater management and the agribusiness sector with a focus on increasing productivity, improving the functioning of markets including food safety, supporting the rural non-farm economy, and enhancing resilience and inclusiveness over a 5-year period. Results Area 1. Increased on-farm productivity and value of crops and livestock. DLI number 1 to 4 is based on the notion that improving the productivity and profitability of smallholder farming is the main pathway out of rural poverty in using agriculture for development. Increasing the quantity and quality of inputs available to smallholders through better targeting of subsidies, improving
Investments in research extension and in animal health care and breeding practices positively impact productivity. A partial shift out of wheat following government withdrawal from the wheat market and a concomitant shift towards HVA would increase farm incomes and provide cheaper wheat flour to consumers. Results Area 2: Increased value addition and competitiveness of crops and livestock. DLI number 528 is based on the notion that there exists significant unexploited potential for income and employment generation through value adding of crops and livestock products. The rural non-farm sector in general and agribusiness in particular, while of great importance to Punjab's overall economic growth, are currently underdeveloped. Further exploitation of the potential would require policy and institutional reforms, including deregulation and modernization of crop marketing markets and agricultural marketing, and elimination of meat and raw milk price caps, combined with public support for private investors to alleviate financing constraints. Results Area 3: Enhanced resilience of smallholder farmers to climate change and natural disasters. DLI number 9 to 11 is based on the notion that increasing vulnerability to climate change events warrants specific actions to protect especially the poor. Exposure to uninsured risk has high efficiency and welfare costs for rural households and especially for the poorer segments of the rural population. In Punjab, addressing issues related to risk management and reducing vulnerability to shock is critical for poverty reduction. According to HIES 2013-14 data, 13.3 million individuals living in Punjab are classified as vulnerable to falling in and out of poverty because of a small income shock. In this context, investments aim to improving efficiency of irrigation systems, increasing access to insurance, and adoption of CSA technologies contribute to reducing vulnerability to poverty and intergenerational poverty transmission.